Assalamu alaikum. Dear students, today we will study about the physical properties, structure, resonance of benzene. First, we will see about the physical properties of benzene. Like hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, benzene is a non-polar. अगरचे इसके पास कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप अटैच ना हो तो बेंजीन नॉन पोलर होता है। तो जब बेंजीन नॉन पोलर होगी तो ये इनसॉल्युबल होगी इन वाटर एंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी लो होते हैं और बेसिकली बेंजीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू केक्यूल फार्मूला। According to Kekulé formula, benzene has 6-membered regular hexagonal ring structure. Hexagonal ring structure in which all the carbon-carbon bond lengths and all the carbon-carbon bond length and carbon-carbon bond angles are equal. The angle between carbon-carbon is 120 degree and the bond length between carbon-carbon is 1.34 angstrom. And all the carbon-hydrogen bond lengths are also equal. That is 1.09 angstrom. So if we write the structure of benzene in terms of 3 alternate double bond, then 2 structure for benzene is possible. These 2 structures are Kekulé structure for benzene. In first structure, double bond alteration may be possible as this, and in the second structure, जो डबल बॉन्ड अल्टरनेट कर रहे हैं वो में भी इस फॉर्म में अल्टरनेट करें। अब ये जो दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर्स हैं ये केक्यूल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट बेंजीन को हम एक और स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी लिखते हैं कि हम यू बेंजीन रिंग बनाते हैं। दिस इज प्लेनर साइक्लिक हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर है और बीच में एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं रोबिन्सन स्ट्रक्चर। नाउ विच स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन इज बेस्ट, ईदर रोबिन्सन और केक्यूल स्ट्रक्चर। सो अगर हम थोड़ा सा इसको डीपली देखें, केक्यूल स्ट्रक्चर को तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन से रिजेंबल कर रहा है और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, अल्केन से रिजेंबल कर रहा है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए और इसकी होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ना वो अल्केन से रिजेंबल कर रही है ना ही वो अल्कीन से रिजेंबल कर रही है। इट मींस बेंजीन की जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो रोबिन्सन स्ट्रक्चर है। लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 2 चीजें देखते हैं, एक मैकेनिज्म, बेंजीन के जितने भी रिएक्शंस होंगे उनका मैकेनिज्म, और दूसरा उस मैकेनिज्म में हमें जो पाई बॉन्ड होते हैं इनकी पोजीशन रिक्वायर होती है सो दैट हम डिफरेंट एरोज यूज करके इन पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग को एक्सप्लेन कर सकें। सो फॉर मैकेनिज्म we will write Kekulé structure of benzene
otherwise we will draw the Robinson structure of benzene. अब ये जो थी information that benzene has planar structure, 6-member ring structure, all the carbon-carbon bond lengths are 1.34 angstrom, all the carbon-carbon and carbon-hydrogen bond angles are 120 degree, and all the carbon-hydrogen bond lengths are 1.09 angstrom. ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कैक्यूल स्ट्रक्चर से, लेकिन ये जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. What are the failures or what are the drawbacks of Kekule structure? According to Kekule structure, benzene has 3 double bond, so it should give addition reaction, while benzene give addition as well as substitution reaction. Second one, as it has 3 alternate double bond, so benzene should give addition reaction and it should less stable, it should reactive, while benzene is stable compound and it has less heat of formation, or it has less heat of hydrogenation. And fourth one, according to Kekule, benzene should oxidize with mild oxidizing agent like KMnO4 or acidified K2Cr2O7, while benzene is stable. So benzene should oxidized with KMnO4 or mild oxidizing agent like K2Cr2O7 with H2SO4, while benzene is stable toward these oxidizing agent. It means कि जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं. इन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने के लिए हम मॉडर्न एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे. अब एक्सरे स्टडी ये शो करती है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी दोनों ये शो करती हैं बेंजीन में अगरचे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है लेकिन बेंजीन स्टेबल है. ये एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली देती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देती है. Why benzene is stable? To answer this, you should know that benzene has molecular formula C6H6. So in benzene every carbon is sp2 hybrid. benzene के अंदर every carbon sp2 hybrid. क्या मतलब? कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2. This is first shell K, second shell L. This shell will not involve in bonding. L shell, S has 2 electrons and P also has 2 electrons. This is ground state electronic configuration of benzene. Now one electron will jump from 2s to 2pz. Then excited state जो बनेगी वो ये बनेगी. अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी. हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो 3 ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिड होंगे, मिक्सचर होंगे, जबकि जो एक रहता है वो अनहाइब्रिड होगा, दैट इज 2pz. सो ये मैंने लिख दिया 2pz. ये तीनों हाइब्रिड है तो ये है sp2. वो अनहाइब्रिड है तो उसको मैंने एल लिखा 2pz. सो बेंजीन जो है उसमें हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है. ये मैंने 6 कार्बन लिख दिए. अब हर कार्बन sp2 हाइब्रिड है. By using these sp2 hybrid orbital, every carbon will form 3 sigma bond, 1 with hydrogen and 2 with adjacent carbon atom. Every carbon will form 3 sigma bond, 1 with hydrogen and 2 with other carbon atoms, adjacent carbon atom. Now every carbon has 2pz orbital.
अभी रहता है हर एक कार्बन के पास 2pz ऑर्बिटल। एक्चुअली स्ट्रक्चर यूं है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये यूं प्लानर है। अब जो 2pz ऑर्बिटल है वो इस डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे इसके परपेंडिकुलर। अब ये जो 2pz ऑर्बिटल हैं ये ऐसे पैरेलल ओवरलैप करेंगे। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ये वाला। अब वो नीचे से भी ओवरलैप कर सकते हैं और अबोव इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो ओवरलैप करेंगे। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये बेंजीन की 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें p ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल या पाई सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, सो ये मैंने लिखा हर कार्बन, ये अब हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब हर कार्बन के पास एक ऑर्बिटल स्टिल जो है वो अनरिएक्टेड, दैट इज 2pz ऑर्बिटल। अब यहां पे मैं शो करूं, ये इस कार्बन का 2pz ऑर्बिटल, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे। अब चूंकि हर एक कार्बन का इस कार्बन का इसके साथ भी सेम डिस्टेंस है, इसके साथ भी सेम डिस्टेंस है, तो इक्वल चांसेस है ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है और इसके साथ। इनफैक्ट यहां पे जो इनका पाई ऑर्बिटल बनेगा, सो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो डीलोकलाइज्ड होगा क्योंकि इन सब का डिस्टेंस सेम है। अब वो यहाँ पे इन दो के दरमियान भी ओवरलैप हो सकता है, इन दो के दरमियान भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे इन दो के दरमियान भी हो सकता है, इन दो के दरमियान भी हो सकता है। सो कोई से दो ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैप हो सकता है। सो चूंकि जो पाई ऑर्बिटल है, सो जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड, वो किसी एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है। तो चूंकि वो एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है तो उस वजह से ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएगा। सिमिलरली अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कर सकता है और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कर सकता है। तो आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी कि जिसमें ये जो बेंजीन रिंग है, प्लानर हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बनते हैं। एक इससे ऊपर बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो इससे नीचे बनेगा। बिल्कुल सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाई करेगी। अबोव एंड बिलो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होकर एक शीट से बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। This electronic cloud will provide the extra stability of benzene. So, due to this electronic cloud formation, every carbon will form 3 sigma bond and half pi bond. For example, ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है इसमें हर कार्बन जो है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और हर कार्बन हाफ पाई बॉन्ड बना रहा है। तो चूंकि हर कार्बन हाफ पाई बॉन्ड बना रहा है तो मैं इनको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। हाफ पाई बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड, वो एक डीलोकलाइज्ड होकर घूम रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सा बना रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जस्ट सपोज कि आपके पास ये फैन है, अब इसके ये 3 जो है वो ऊपर है। अगर ये एक जगह पे फिक्स है तभी तो मुझे नजर आ रहे हैं, और अगर एक जगह पे फिक्स नहीं है, ये घूम रहे हैं, तो इस तरह का आपके पास एक क्लाउड सा बनता है जिससे आपको कोई उसकी पोजीशन के बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली इस टाइम इसके विंग कहां पे। सो सिमिलरली जो बेंजीन जो पाई बॉन्ड है ना, वो इन चारों जो 6 कार्बन है इनके दरमियान वो क्या कर रहा है? डीलोकलाइज्ड। उस डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बेंजीन को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। नाउ what is the modern structure of benzene? X-ray study and spectroscopic studies, even modern atomic orbital treatment of benzene shows that, बल्कि मैं कहूँगा confirms that benzene has 6-membered hexagonal ring structure with electronic cloud or with conjugated pi electrons or with 3 alternating double bonds. These double bonds will give the stability to benzene. Our next topic is resonance. What is resonance?
resonance. Possibility of different pairing scheme of valence electron of an atom. Resonance can be defined as possibility of different pairing scheme, possibility of different pairing scheme of valence electron of an atom is called resonance, and due to resonance resulting structure are known as resonating structure. So benzene have 5 resonating structure. First one this, second one, and the resonating structure are separated by double headed arrow. अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन ये है actually, and third structure is like this, fourth structure is like this, and fifth structure is like this. These 5 are the resonating structure of benzene. First 2 are Kekulé structure, and next 3 are the Dewar structure. In fact, benzene is the resonance hybrid of all these 5 structures. बेंजीन इन 5 स्ट्रक्चर का मिक्सचर है. अब जो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, और जो डिवार स्ट्रक्चर्स हैं इनकी माइनर कंट्रीब्यूशन है. कितनी मेजर कंट्रीब्यूशन? अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आपके पास जो डिवार स्ट्रक्चर है हर स्ट्रक्चर की 7.3% कंट्रीब्यूशन. इट मींस अगर एक स्ट्रक्चर की 7.3% है तो तीनों की मिला के 22% इनकी कंट्रीब्यूशन है. और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं 39% कैक्यूल स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन है. अब व्हाई दैट डिवार स्ट्रक्चर हैज माइनर कंट्रीब्यूशन व्हाइल कैक्यूल स्ट्रक्चर हैज मेजर कंट्रीब्यूशन? रीजन इज दैट here the overlap is along the larger distance. यहां पे जो कार्बन कार्बन का ओवरलैप और लार्जर डिस्टेंस पे हो रहा है, तो जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती जाती है उसकी उतनी उसकी स्टेबिलिटी लेस होती जाती है. ड्यू टू लेसन स्टेबिलिटी डिवार स्ट्रक्चर हैज माइनर कंट्रीब्यूशन. तो बेंजीन इन 5 का मिक्सचर है, तो मोस्टली हम बेंजीन को किससे शो करते हैं? रॉबिन्सन स्ट्रक्चर को. बेंजीन रिंग बनाते हैं, बीच में एक सर्कल ऐड कर देते हैं. नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस एनर्जी. व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? अब इसको आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द difference in energy of actual structure and the hypothetical structure or canonical structure. Difference in the energy of canonical structure. Canonical mean hypothetical, ख्याली स्ट्रक्चर, एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नाउन एज रेजोनेंस. रेजोनेंस एनर्जी क्या मतलब? यह चीज हमें यह बताती है कि बेंजीन कितनी स्टेबल है. तो वो एनर्जी जो बेंजीन के स्टेबल होने की वजह से लेस होती है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है साइक्लोहेक्सीन. अगर इस साइक्लोहेक्सीन की मैं हाइड्रोजिनेशन करता हूं तो मेरे पास बनेगा साइक्लोहेक्सेन, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी. कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 120 किलो जॉल
पर मोल। अब मैं इसकी सेकंड फॉर्म लिखता हूं या एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, दैट इज 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन। अगर मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करूं तो मेरे पास अगेन साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इस दौरान जो हीट रिलीज होगी वो ऑलमोस्ट इसके डबल 120 है, तो 120 का डबल कितना होगा 240 किलो जॉल पर मोल। अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इससे थोड़ा लेस है, वो 231 किलो जॉल पर मोल। अब ड्यू टू कंजुगेशन अब ये जो एनर्जी है 240 से लेस होकर 231 पे पहुंच गई। अगर मैं बेंजीन की हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर लूं, दैट इज 1,3,5-साइक्लोहेक्साट्राईन, 1,3,5-साइक्लोहेक्साट्राईन लूं, दैट इज बेंजीन रिंग। अगर मैं इसकी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर लूं तो अगेन बनेगा साइक्लोहेक्सेन। तो जो हीट रिलीज होनी चाहिए थी 120 का 3 टाइम बनता है 360 किलो जॉल पर मोल। ये जो हीट रिलीज होनी थी ये हाइपोथेटिकल है, ये अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना कि अगर सिंगल बॉन्ड के लिए इतनी है, एक डबल बॉन्ड के लिए 2 के लिए इसके डबल हो गई, तो 3 के उसके ट्रिपल हो गई। लेकिन जब एक्चुअली इसकी हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखी तो वो आई 208 किलो जॉल पर मोल। एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है 208 किलो जॉल पर मोल। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कितनी है 360। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया आपके पास 152 किलो जॉल पर मोल। अब ये जो 152 किलो जॉल पर मोल जो डिफरेंस है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है बेंजीन की, एंड दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। सो ये आज का आपका लेक्चर था जिसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ड्रॉबैक्स ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर, मॉडर्न एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, ये चीजें आपने स्टडी की। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे।